Hello and welcome to Rifsky Presents All Fingers and Thumbs. Today we are going to record our 30th episode. During our journey of 30 episodes, we have talked with a lot of guests. We have talked in various episodes about art, design, architecture, language, and various other things. Today also we are going to talk about interesting topic on individualism, food choices, health, nutrition, and a little bit about environmentalism. But before I introduce my guest, I would like to thank Anahata for giving us this space to record this episode. Anahata was founded by Radhika Ayatalati. She is a mother, an entrepreneur, a mountaineer, and a yogini. Anahata has this venture of Anahata Bazaar as well as the cafe. Their focus area is indie living, essential oils, food, beauty, and a lot of areas where they want others to live a healthy lifestyle. So they are focusing on that. You can check out their products in Vadodara. They also have the cafe where you can have delicious food and especially South Indian filter coffee. So I would like to thank them, and then I'd like to introduce our guest. The thing that struck the most was her username, which is called Your Humorous Nutritionist. And when I went through her content, she put out a lot of homegrown food items where she made stuff using locally grown products, right? And at the same time, she had various conversations with people related to food and nutrition and stuff like that. And I also saw one episode with Ronak, and where she talked a little about food at the same place. So her name is Asta Maida. She is also known as Your Humorous Nutritionist. She has completed her masters in specializing in food and nutrition. And the interesting part about her masters is she has researched on a very rare topic. हम सबको पता है जो रेडिश होता है, जो हम डेली यूजेज स्पेशली विंटर्स में हम करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द सीड्स. और उन्होंने रेडिश के सीड्स पे रिसर्च किया है. तो इट शोज कि कितना इंट्रिकसीज पे उनको काम करना अच्छा लगता है और कितनी चीज़ों पे वो डीपली समझना चाहते हैं और कितना इंटरेस्टिंग है उनके लिए ये फूड एंड न्यूट्रिशन. तो आज का जो टॉपिक है वो इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर फोकस रहेगा हमारा, कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी शुड डू व्हेन इट कम्स टू फूड एंड न्यूट्रिशन. एट द सेम टाइम we'll talk a little about our impact on environment, how our choices create an impact on our environment. So let's welcome her and let's get to know more about this topic. Thank you, Asta, for joining us today. Thank you so much for having me here. So I'm very excited to talk about this topic because food, nutrition and health, it is all very close to my heart. I've studied 5 years in this subject, and also talking to people about it is very important because I know कि लोगों के लिए खाना important है, just like me. But like, why do we have to eat specific food and what it does to our body is also necessary to understand. So I'm very glad we are talking about this today. तो मैं हमेशा से क्यूरियस रहा हूँ इस बारे में कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वी आर मोर अवेयर, दिस जनरेशन इज क्वाइट अवेयर ऑफ देयर फूड चॉइसेस. और हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है इंटरनेट पे अवेलेबल. एट द सेम टाइम डॉक्टर्स रेकमेंड करते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं. फिर भी वी हैव दिस नीड ऑफ गोइंग टू अ डायटिशियन, राइट? तो मुझे जनरली लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव है कि अगर हम स्पेशलाइजेशन में फोकस करें कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में हमें डिफिकल्टी है तो हम उस एरिया के एक्सपर्ट के पास जाए, राइट? तो इट्स गुड, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु do not want to go to a dietitian. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें डायटिशियन के पास, मतलब फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, कि व्हाई डू वी नीड अ डायटिशियन एंड क्या उनका रोल क्या हो सकता है हमारी हेल्थ की जर्नी में? ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी इज़ दैट पहले खाना एंड एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल. ओके, अर्लियर लाइफ वाज सिंपल. रोटला, शाक, दाल, भात, हम यही खाते थे. ओके, प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड फूड्स, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी. ओके, सो इट यूज टू बी वेरी सिंपलर अर्लियर एंड सो पीपल वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड in having a person to tell them कि आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, why should you avoid such kind of food. But now we have so much food, इतना सारा variety है, जिससे हम लोग जानते हैं कि if we have many choices then we are confused. So that is why I think a dietitian का जो रोल है वो बहुत important है, because when we have a lot in our
pocket, then we have to be sure what are we having. Okay, we cannot go for everything and anything because then there are many other side effects. जैसे हम जानते हैं बहुत सारे फूड के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको हम अच्छे से अगर नहीं जानेंगे then it can be really bad for our health. So dietitian is the one who will tell you that ये food क्यों आप ले सकते हो, why you should avoid certain kind of foods, and also what is complete food. हम डाइट को ऐसा मानते हैं कि सिर्फ सैलड खाना है. इट्स नॉट सैलड. देयर इज़ अ लॉट मोर अबाउट डाइट. इट इज़ एवरी फूड दैट यू ईट. इवन रोटी सब्जी दाल चावल इज़ अ होल मील. तो आपको डाइटिशियन ये नहीं कहेगा कि आपको सिर्फ सैलड्स खाना है. इफ़ दे हैव स्टडीड वेल दे विल डेफिनेटली टेल यू हाउ यू हैव टू हैव अ कंप्लीट मील विच इंक्लूड्स एवरी फूड ग्रुप. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी आजकल हम लोग इतना ज़्यादा रश में चल रहे हैं कि हम लोग को easy to ready to eat foods जल्दी मिल जाए तो we are definitely to go with them, right? But I don't think कि वो इतना ज़्यादा important है because simple चीज़ें भी healthy चीज़ें भी बहुत कम टाइम में बन सकती है. So that is how a dietitian can help you कि बहुत सारे options हैं which you can explore and you just don't have to go for the products which are in the market. You can go for them but even अगर आप market से भी कुछ ले रहे हो then what are the things you have to keep in mind when you take a product. So उस सारे चॉइसेस में हेल्प करने के लिए डाइटिशियन विल डेफिनेटली हेल्प यू. बट एक डाइटिशियन को कितना अपडेटेड रहना पड़ता है क्योंकि मार्केट में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स देखो हमारे बॉडी में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब कॉमन है, वो सब हमेशा सेम रहेंगे, राइट? बट प्रोसेस्ड फूड्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. और उसमें लोग ऐसे भी मार्केट करते हैं कि हमारी चीजें प्रोसेस्ड है लेकिन हेल्दी है. जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो ऐसे प्रमोट करके अपनी एडवर्टाइजिंग में कि बच्चों के लिए ये हेल्दी है, एक रोटी के बराबर 4 रोटी के बराबर ये हमारी फूड प्रोडक्ट है. तो उसके साथ कैसे मतलब मैचअप कर पाएंगे कोई भी डाइटिशियन? उनको कितना अपडेट रहना पड़ेगा? डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, इन सबको बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है. एक्चुअली मैं मेरी बात करूँ तो अब मेरे को पता है कि व्हाट इज़ फूड लेबल. ओके, आई नो व्हाट फूड पैकेजिंग मीन्स. सो मेरे को आदत पड़ गई है वेन एवर आई हैव अ प्रोडक्ट इन माई हैंड, नॉट जस्ट फूड प्रोडक्ट, इवन अगर कोई भी और प्रोडक्ट है, अगर स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट है, द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक इज़ फॉर द इंग्रेडिएंट लिस्ट. इट हैज़ बीन अ हैबिट एंड आई थिंक नॉट जस्ट अ डाइटिशियन बट एवरी इंडिविजुअल शुड हैव दिस हैबिट. अगर तुम्हारे हाथ में कोई प्रोडक्ट है, इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन योर बॉडी और यू आर कंज्यूमिंग इट, यू डेफिनेटली नीड टू नो कि उसके अंदर क्या है. ओके, यू कैन नॉट रिलाई कि हाँ भाई ये तो ये ब्रांड का है तो ये डेफिनेटली अच्छा ही होगा, या तो मार्केट किया है इसलिए वो अच्छा होगा. दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू मेक श्योर फॉर योर सेल्फ कि ओके ये इंग्रेडिएंट है. जैसे अगर अंदर इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा है सॉर्बिटॉल, तो हमें नहीं पता कि सॉर्बिटॉल क्या है, वो शुगर का ही सब्सटीट्यूट है. बट ये सिर्फ डाइटिशियंस आपको बता सकते हैं. तो इवन दिस इज अ रोल ऑफ द डाइटिशियन दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट द कम्युनिटी और बिल्डिंग यू शुड इन्फॉर्म देम कि अगर कोई इंग्रेडिएंट का नाम इस तरह से लिखा है, जैसे शुगर का सब्सटीट्यूट है, वैसे ही MSG जो बहुत फेमस है चाइनीज़ फूड में, वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है. सोडियम इज सॉल्ट. ओके, तो वो सॉल्ट हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है. तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स के नाम है जो हमें फूड लेबल्स पे देखना ज़रूरी है. एंड फॉर अ डाइटिशियन, not just for me, for everyone, I am pretty sure they have to stay updated for every little thing that comes in the market. Otherwise they will not be able to help their customers and their clients. जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि व्हेन यू सी सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स, राइट, लाइक शुगर के लिए और कुछ नाम रखेंगे, डायरेक्टली शुगर नहीं लिखा होगा, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड कि ये इसमें क्या होगा. तो वो ऐसा तो हो सकता नहीं ना कि मैं जितनी भी, लेट्स से आई एम इन द मार्केट एंड आई एम ट्राइंग टू परचेज 100 प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम. I can't keep on calling my dietitian or nutritionist to ask about these 100 products. True. So is there any way to be aware of such substitutes? Okay, so the most basic thing is that you have to just see the first ingredient. Okay, तो अगर कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा, उसका नाम में अगर शुगर या रिफाइंड फ्लावर लिखा है, देन दैट इज द इंग्रेडिएंट जो सबसे हाई कंटेंट में होगा उस प्रोडक्ट में. ओके, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज द वन विच इज द मोस्ट इन द प्रोडक्ट. जैसे अगर मैंने कोई बिस्किट लिया और उस पर लिखा है व्हीट फ्लावर बिस्किट, एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर रिफाइंड फ्लावर लिखा है और उसके बाजू में व्हीट फ्लावर लिखा है, दैट मीन्स रिफाइंड फ्लावर का कंटेंट ज़्यादा है बिस्किट में और व्हीट फ्लावर का है बट रिफाइंड फ्लावर से कम है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच यू कैन कीप इन माइंड. सो दैट वे यू कैन लाइक गेट टू नो कि इंग्रेडिएंट कौन सा सबसे ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट में, एंड दैट कैन हेल्प. इंटरेस्टिंग. तो
इससे मुझे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि ये अवेयरनेस तो ज़रूरी है ही, राइट? Okay. लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि कॉमनली जब भी हम अच्छी फूड प्रोडक्ट्स या अच्छी फूड चॉइसेस की बात करते हैं ना, तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वी आर ऑन अ डाइट। Okay. तो मतलब जैसे अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं बाहर का नहीं खाने वाला या तला हुआ नहीं खाने वाला, तो तुरंत ये लोग पूछेंगे कि आर यू ऑन अ डाइट? पर जरूरी नहीं है ना कि इंसान डाइट पे हो तभी, कोई स्पेसिफिक डाइट का रूटीन फॉलो कर रहा हो तभी वो कहलाया जाएगा, राइट? इफ वी ईट माइंडफुली एंड इफ वी कंसिडर में आधे तो मतलब माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं या फिर भूखे रह जाते हैं, Yes. क्योंकि ये फॉलो करना है वो फॉलो करना है, तो और खुद से कर रहे हैं। आज ये ट्रेंड में देख लिया तो वो फॉलो कर लिया, फिर कल दूसरी चीज देख ली, मतलब किसी ने या तो कोई रिलीजियस बेसिस पे कोई किसी ने बोल दिया या फिर किसी ने इंटरनेट पे एडवाइस दे दिया, तो सबको ऐसे ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे और कभी भी कोई एक फिक्स्ड वे में काम नहीं करेंगे या फिर कोई एक्सपर्ट से नहीं पूछेंगे। Yes. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस ट्रेंड्स जो और जो ये फूड और डाइट से रिलेटेड जो लोगों में मीथ होता है कि भाई ये खा रहे हैं तो डाइट पे होंगे, नॉर्मली भी खा सकते हैं। True. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Okay, so the first thing is कि डाइट का नाम ही सबने बहुत गलत तरीके से ले लिया है. The first thing is diet is something that you have to have food groups, all food groups, okay, and in proportion, okay. What does a diet mean is that you have all food groups which include cereals, pulses, fruits, vegetables and milk products, okay. ये सारी चीज़ों का अगर combination होगा and portion में होगा, okay, portion is very important, then it is a diet. So basically हम सब लोग diet कर रहे हैं, okay. So I think we should be proudly saying that yes, I am on a diet. Why not to say? If someone is saying कि हाँ तू तो सिर्फ सब्जियाँ खा रहा है, हाँ तू तला हुआ नहीं खा रहा है, तो तू तो डाइट ही कर रहा है, yes, I am dieting and it is healthy for me, so I am doing it. If you want to say बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं बट उसको सिर्फ एक अभी नाम दे दिया गया है, इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा. बट आई थिंक वी शुड बी एक्सेप्टिंग दैट येस वी डू डाइट एंड वी शुड बी डाइटिंग, okay. We should be having proportionate food and we should have complete food, okay. So that is the first thing. दूसरी बात ट्रेंड्स की बात करते हैं. सो ट्रेंड तो अभी इतने सारे चल रहे हैं दैट मैं बता नहीं सकती, मैं खुद ट्रेंड का शिकार बन चुकी हूँ, ओके. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी सी ऑन इंटरनेट एंड देन वी आर नॉट एबल टू गेट एन आइडिया व्हाट वी रियली वांट टू डू. देयर आर मेनी थिंग्स जो हम रील्स में अगर हम देख ले तो हाँ भाई मुझे ये बनाना है, सो वी सेव इट. Do you really make it? Because I don't make it. And then it's so frustrating that we have so much content in our head, but we do not know how to implement it. And it's not good, okay? So simply just get a dietitian, उनको पूछो, इनसे बातें करो कि मैं क्या खा सकती हूँ, मुझे क्या नहीं करना है. एक ही कंसल्टेशन में she will give you an idea. He or she will give you an idea what your body is like, okay? So food को इस तरह से मत देखो कि it's something that is to do with बड़े बड़े actors and वो सब. Don't relate food with people who are eating very healthy and very they are staying slim and six packs and all of that. Relate food with your body, what your body requires, okay. So जितना individualize कर पाओगे food को उतना आप healthy रह पाओगे. I won't say as a dietitian कि खाना छोड़ दो, burgers खाना छोड़ दो, only have salads, because I myself am a human. I will tell everyone which is sustainable, जो आपको long term तक एक healthy वे में जीना सिखाएगा, उस तरह का फूड आपको लेना चाहिए. दैट विल हेल्प यू टू ग्रो हेल्दियर फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड ऑल्सो कीप यू डिजीज फ्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन. सो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर जैसे अभी आपने बोला कि टू इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अवेयरनेस ऑफ योर ओन बॉडी, राइट? एंड हम पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, हम तो पहले एक तो ये चॉइसेस तो पता ही नहीं होते हमें कि हम जो खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है, वो तो सेकेंडरी आ रहा है. प्राइमरी ये भी नहीं पता कि हमारे बॉडी के लिए कितना सही कितना गलत है. बहुत सारे लोग जो 20s 30s में होते हैं, जो अपने प्राइम में होते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो वो लोग वेल्थ के चक्कर में या फिर कैजुअली क्योंकि उनकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, तो वो लोग कुछ भी खा रहे हैं. वो लोग ना डायटिशियन के पास जा रहे हैं, ना फिर या तो फिर अपने रिपोर्ट्स भी नहीं करवा रहे, राइट? तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी को क्या अच्छा रहेगा, मतलब किस चीज़ के साथ मेरा शुगर स्पाइक हो रहा है
कैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हम्म। तो उनको आइडिया ही नहीं है। तो और हम मतलब जैसे हर एक सिटी में होता है कि हर एक सिटी में एक नाइट मार्केट होता है Yes. जहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स अच्छे अवेलेबल होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। Yes. तो हमेशा रात को वहाँ पर भीड़ रहती है। रात्रि बाजार। या तो वी आर इवन दो वी आर अवेयर कि हमें नहीं खाना है, तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि क्योंकि हमने ये सिस्टम बना दिया है कि दोपहर में एक बार लंच, रात को डिनर और 2-3 बार हम नाश्ता करते हैं, राइट? Yes. तो इवन दो वी आर नॉट हंग्री, बट सिंस वी आर नॉट ईटिंग माइंडफुली, हम रात को 11 बजे भी खा रहे हैं, 12 बजे भी खा रहे हैं, क्योंकि हमने डिनर मिस किया 8 बजे का, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम नहीं खाएंगे, हम 11 बजे 12 बजे खाएंगे। तो इट लीड्स टू एन अनहेल्दी लिविंग। Yes. तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू बी माइंडफुल, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? Yes. अवेयरनेस के बाद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अवेयरनेस के लिए भी मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। लोग हमेशा कोई भी मतलब 40s में भी लोग होते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं कि जब तक कोई बीमारी ना लग जाए, जब तक दे आर नॉट फेसिंग एनी डिजीज, दे आर नॉट गोइंग टू अ डॉक्टर टू गेट अ हेल्थ चेकअप। Yes. और तब तक वो सब चीजें ऐसे ही खाते रहेंगे जैसे ये मशीन है और अपने आप चलने वाला है। तो हाउ टू बी अवेयर, हाउ टू बी माइंडफुल एंड व्हाट शुड वी डू Yes. सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, मतलब 20s 30 से जब से हमारे पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे, जब हम खुद चॉइस कर रहे हैं कि हमें ये खाना है, इस टाइम पे खाना है, तब से ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो व्हाट शुड यू हैव टू टेल अस अबाउट इट? Okay, so the first and the most important thing is that पहले तो हमें पता है कि nutrition starts from the baby itself, but let's not talk about babies because their responsibilities मम्मी ले लेती है, ठीक है? But अब हम बड़े हो गए, okay? We are in our teens and we have also crossed our teens. तो उन लोगों को क्या करना है? They have to be mindful by first making a choice कि food कैसे group के साथ खाना है, okay? Whenever you are having food, make sure you are with people who are calm, who are composed, and if you're having friends who are very hyperactive and want to do something every time of the day, then you should make sure that you take your food to a place which is peaceful and just have food in peace. The most important and the simplest thing is that just have an idea of what you are eating. Every little thing that you are eating, every little morsel that you have in your mouth should you should consciously know that इसमें क्या चीज़ें डली होगी, okay? पता होना चाहिए। हाँ, पता है कि समोसा खा रहे हैं, बट समोसा में आलू कितना है, उसमें मसाले कौन से हैं। तुम समोसा भी खाओ, बट उसको अच्छे से चबा के खाओगे ना, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होने ही वाला है, ओके? सो द मोस्ट जितने भी टीनेजर्स में, उसमें मेजरली इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, ओके? गट इश्यूज। वो क्यों होता है? बिकॉज आप चबा नहीं रहे हो ठीक से। आपको बातें करनी है, आपको दूसरी एक्टिविटीज़ करनी है, नो, जस्ट कॉन्शियसली ईट योर फूड, च्यू योर फूड प्रॉपरली, बिकॉज आधे से ज़्यादा डाइजेशन हमारे माउथ में ही होता है, जो लोगों को पता ही नहीं है, ओके? सो इफ़ यू चू प्रॉपरली, तुम्हारे मुंह में जो सलाइवा है उसी से काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन होता है। तो इफ़ यू चू प्रॉपरली देन डेफिनेटली द इनडाइजेशन, गट इश्यूज़, जो भी आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का इश्यूज़ रह रहा है टीनेजर्स को, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो मेक श्योर यू ईट प्रॉपरली, यू च्यू प्रॉपरली एंड you eat in peace. That's the most important thing. Nice. That's important. But the second step has to be, after being aware, I think everyone should get a health checkup, even though they are in 20s, Okay. every now and then, so that they can get a better grasp of where they are in Yes. terms of health. It will help them monitor कि क्या खाना है, कितना खाना है, और साथ में एक्सरसाइजिंग और वो सब कितना करना है। Yes. क्योंकि हम ज्यादातर जब भी कोई ऐसे ट्रेंड्स वाले या कोई भी डाइट भी फॉलो करते हैं ना, तो हमें लगता है सिर्फ डाइट फॉलो करने से या फिर सिर्फ अकेले जिम जाने से, लोग ऐसे भी करते कंपन से कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ हर रोज 1.5 घंटा 1 घंटा, तो आई एम एलिजिबल टू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। True. वो भी तो जरूरी है ना कि हाँ. वहाँ पर भी बैलेंस हो। इवन दो यू आर एक्सरसाइजिंग, इवन दो यू आर बर्निंग फैट, इट डजंट मीन कि यू आर एलिजिबल टू ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। देयर हैज टू बी अ बार कि हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ. यहाँ पर ये खाएंगे, Yes. वो खाएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन हमेशा से मुझे रहता है कि इवन दो we can be aware of the stuff that is there on the processed food, right? Yes. कि ये यहाँ पर इसमें इतना परसेंटेज ये है, वो है, और बहुत लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि प्रोटीन खाओ, ये खाओ। और ये भी होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में पर्टिकुलरली कि जिम जाने वाले या फिर जिम में इंस्ट्रक्टर्स भी जो होते हैं, हाँ. they are not trained in nutrition, right? But they guide us. Yeah. True. But they still guide us in terms of क्या खाना चाहिए, कितना खाना है। तो ज्यादातर वो प्रोटीन करते हैं।
तो मेरे लिए ये भी जरूरी है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस समझूं और कितना इंपॉर्टेंस किस चीज का। तो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? Okay, first I'll talk about जो आपने पहले बात की, there should be a balance of everything like physical activity, मतलब आपका जो exercise है and जो भी आप कसरत कर रहे हो उस सब का एक balance होना चाहिए. What you're eating is also very important, वो भी balanced होना चाहिए, and also if you're sleeping on time or not. Okay, so mental peace, physical activity and what you eat, इन तीनों का balance होगा then definitely you will be healthy. Now we talk about macronutrients and micronutrients. Okay, तो मैक्रो में बेसिकली प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा और अपना फैट्स आ जाएगा. ओके, एंड माइक्रो में आएगा वाइटामिन एंड मिनरल्स. ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसको हम फोकस बिल्कुल नहीं करते. आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, एंड काफ़ी लोगों को दूसरे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी डेफिशिएंसी है, बट उन्हें ऐसे ही लगता है मेरे को B12 की डेफिशिएंसी है. ओके, तो बी कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारे आते हैं, B1, B2, B3, B9, बहुत सारे, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू द डीप. ओके, द फर्स्ट थिंग इज गेट चेक्ड. अगर आपको रिपोर्ट में लग रहा है डेफिशिएंसी है, देन आपको डेफिनेटली एक डॉक्टर या एक डाइटिशियन को मिलना चाहिए. वो आपको बताएंगे कि आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो. अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगा देन यू हैव टू स्टार्ट सप्लीमेंटेशन, एंड सप्लीमेंटेशन 2 से 3 महीने का होता है. उसके बाद डाइट से मतलब फूड से आप आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाओगे. बट इफ़ यू आर नॉट डेफिशिएंट एंड इफ इट इज़ एडिक्वेट इनफ, देन आपको सिर्फ डाइटिशियन को आप बोल सकते हो कि मैं डेफिशिएंट तो नहीं हूँ बट आई वांट टू मेक श्योर कि मैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स अच्छे से मेरे डाइट में इंक्लूड करूँ. तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो ऐसे केस में हम लोग डाइटिशियन को ये पूछ सकते हैं कि कौन से फूड ग्रुप्स है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं टू लाइक फुलफिल अवर माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स. उसमें वेजिटेबल्स के मोस्टली सारे ग्रुप्स आ जाएंगे. ओके, एंड होल ग्रेन्स आएंगे. ओके, आजकल हम प्रोसेस्ड सीरियल्स ले रहे हैं. ओके, सीरियल्स भी प्रोसेस्ड होते हैं, जैसे हमारे दाल्स है, हमारे लेग्यूम्स है, वो सारी चीज़ें भी. दाल जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड आती है, उसको पॉलिश किया जाता है, तो वो पॉलिश जो दाल्स होती है उसमें न्यूट्रिएंट मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं. इसलिए द डाइटिशियन विल टेल यू दैट होल ग्रेन्स लेने हैं, लेग्यूम्स लेने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं. ये सारी चीज़ें से हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वाइटामिन एंड मिनरल्स, मेनली आयरन है, कैल्शियम है. कैल्शियम हमें मेनली हमारे डेयरी से मिल जाएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड है, उन सबसे हमें हमारे कैल्शियम, आयरन, वो सारे के रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे. और जो दूसरे सारे वाइटामिन है उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें हमारे वेजिटेबल्स और वो सारे ग्रुप से मिल जाएंगे. ये जो अभी आपने मैक्रो माइक्रो को डिवाइड किया ना, तो उससे आई हैव अनदर क्वेश्चन. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस व्हेन वी मेट लास्ट टाइम एंड आई वाज अमेज्ड कि ये सब भी होता है. तो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इट कि कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है मैक्रो हो या माइक्रो हो वो एक साथ कंज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपनी बॉडी के लिए. Yes. वो इतने मतलब हार्मफुल या टॉक्सिक नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स डिफिकल्ट फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट. Yes. सो कैन यू एनलाइटन अस विद दैट? क्योंकि Yes. मुझे पहली बार पता चला कि ऐसे भी होता है कि सारे न्यूट्री इवन दो वी आर हैविंग अ कंप्लीट मील, इट्स नेसेसरी दैट वी अंडरस्टैंड कि कौन से न्यूट्रिएंट्स एक साथ, जैसे बहुत सारी चीज़ों में हमारे बड़े बोलते हैं कि मतलब एक साथ कुछ कुछ चीजें नहीं कंज्यूम करनी Yes. चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड, ये जिनको हम विरुद्ध आहार बोलते Yes. हैं. तो वैसे ही न्यूट्रिएंट्स में भी कुछ होता है, राइट? सो कैन यू एनलाइटन अस? हाँ, डेफिनेटली. सो सबसे बेसिक होती है. ओके, सो दीज कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है. ओके, आयरन अगर कोई चीज़ में होगा और उसके साथ अगर आप कैफीन या टैनिन वाली कोई ड्रिंक, कोई भी बेवरेज अगर आप लोगे तो वो आयरन को एब्जॉर्प्शन को रोकेगा. ओके, सो थेपला जो है उसमें मोस्टली हम लोग पालक डालते हैं, मेथी डालते हैं, मेथी का थेपला. तो मेथी, ये सारे सोर्सेज आयरन के सोर्सेज है, राइट? उसके साथ अगर आप चाय ले रहे हो जिसमें टैनिन है तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगा, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देगा. वैसे ही अगर पोहे में आयरन कंटेंट होता है, पोहे के साथ अगर आप चाय लेते हैं जो बहुत फेमस
मिल्क प्रोडक्ट, ओके। तो पनीर का कैल्शियम और पालक जो है उसका आयरन, ये दोनों फाइट करेंगे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, इसलिए ये बहुत फेवरेट रेसिपी है सबका पालक पनीर, बट इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज दोनों न्यूट्रिएंट्स एक साथ एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएंगे, कोई एक ही एब्जॉर्ब होगा, ओके। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसे कोई भी फूड ग्रुप्स है जिसमें अपोजिट न्यूट्रिएंट्स है दोनों में, वैसे फूड्स हमें एक साथ कंज्यूम नहीं करने। आप 1 आवर के बाद उससे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको चाय और कॉफ़ी पीने की आदत है, देन फर्स्ट हैव योर टी और योर कॉफ़ी एंड आफ्टर 1 आवर यू कैन हैव योर मील, अदरवाइज हैव योर मील एंड आफ्टर 1 आवर हैव योर कॉफ़ी और टी। ओके हम लोग जिम वाले लोगों से सुनते हैं कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारा मसल बिल्ड करता है, एंड प्रोटीन सिर्फ मेन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स, ओके। मेक इट वेरी श्योर बिकॉज women हैव अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिज्म गोइंग इन देयर बॉडी, ओके। सो उनका इतना ज़्यादा मसल वेस्टिंग होता है जो हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए प्रोटीन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मेन, बिकॉज मेन की बॉडी में तो ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है जो मसल बिल्ड करता रहेगा, बट फीमेल्स का क्या, उनको भी प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज उनकी बॉडी में मसल वेस्टिंग बहुत होता है, सो प्रोटीन इज़ दैट वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल सोर्स है एनर्जी का, अगर आपको थकावट लग रहा है आप एक ग्लूकोज का पानी पी लीजिए, यू विल फील एनर्जाइज। सो इवन कार्बोहाइड्रेट इज़ नेसेसरी इन आवर डाइट। एंड फैट्स की मैं बात करूँ, आप मतलब हम लोग ने सबने सुना है कि घी है, तेल है, ये सब कम खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट फैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट, ओके। जो भी हमारे बोन्स है उसका ल्यूब्रिकेशन है वो सब कौन करता है, फैट ही करता है। सो हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप घी ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप ग्राउंडनट ऑयल भी ले सकते हैं। ट्राई टू हैव डिफरेंट ऑयल्स इन योर डाइट बिकॉज एवरी ऑयल हैज़ सम न्यूट्रिएंट्स और द अदर, ओके। हर एक ऑयल में भी अपना खुद का एक न्यूट्रिएंट होता है, सो ऑयल इज़ वेरी एसेंशियल। द ओनली थिंग विच यू शुड मेक श्योर इज़ आप फ्राइड चीज़ें मत खाइए। आप कुकिंग में थोड़ा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप चावल में थोड़ा घी डाल सकते हैं, बट आप तला हुआ खाना खाएंगे देन दैट वोंट बी अ हेल्दियर चॉइस। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें ये ध्यान रखना चाहिए। There's an image of a man Yes. and not of a woman. So it's essential for women to understand कि भाई हमारे लिए भी प्रोटीन कंजम्पशन इतना ज़रूरी है, but at the same time ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि सिंस वी आर अवेयर कि हमें फाइबर ज़्यादा कंज्यूम करना है, प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना है फॉर डाइजेशन एंड फॉर एवरीथिंग, तो ये भी हो सकता है कि इफ़ वी आर नॉट अवेयर तो हम ओवरडोज कर ले चीज़ों का, कि फैट को रोकने के लिए या फैट कम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इवेंट्स भी आते हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए कि लाइफ की कोई मेजर इवेंट्स है तो वो डाइट स्टार्ट करेगी फैट लॉस करने के लिए, राइट। तो देन दे विल फोकस ऑन प्रोटीन्स एंड स्टफ एंड देन दे विल फॉरगेट अबाउट फैट्स एंड अदर थिंग्स, बट दैट्स आल्सो हार्मफुल, राइट। अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशन इफ वी ईट मोर ऑफ proteins and fibers and ignore carbohydrates or fats, what happens? So majorly ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं पता है, मोस्टली वो लोग कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर देते हैं, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने बात की, इट इज़ द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को ही बंद कर दोगे तो एनर्जी ही नहीं रहने वाली। वो जो लोग होंगे जो लोग डाइटिंग करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देंगे, आप लोग देखोगे कि वो बहुत एनर्जी उनकी लो रहेगी, उनको कुछ भी थोड़ा सा काम अगर दे देंगे तो थकावट लगेगी, वो लोग एकदम ऐसे काफ़ी बार वो लोग फेंट भी हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी का जो सिंपलेस्ट सोर्स है वो उन्होंने कंज्यूम ही नहीं किया, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स को प्लीज़ कंप्लीटली अवॉइड मत करो, यू कैन डेफिनेटली अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको कम ही करना है तो 3 रोटी की जगह 1 रोटी खाओ, अगर बड़ा सा बाउल चावल का खाते हो तो चावल का पोर्शन कम कर दो, ओके। दैट इज़ द वे यू कैन हैव अ बेटर एंड सस्टेनेबल फूड चॉइसेस इन योर लाइफ। एंड दूसरी बात, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रोटीन एंड फैट को अवॉइड करना पे फोकस करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बात की, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पल्सेस में होते हैं, होल ग्रेन्स में होते हैं,
अनरिफाइंड पल्सेस में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे और हम सिर्फ सिंपल ओट्स खा रहे हैं या सिर्फ फाइबर ले रहे हैं हमारे डाइट में, काफ़ी लोग इसबगुल खा रहे हैं कि अच्छे से मेरा पेट साफ़ हो जाए। भाई तो फाइबर इतना ज़्यादा ले रहे हो तो दूसरे सारे न्यूट्रिएंट्स भी तो वॉश आउट हो गए तुम्हारे बॉडी में से। सो डोंट जस्ट फोकस ऑन ईटिंग ओनली फाइबर वाले फूड्स, फाइबर के साथ कार्बोहाइड्रेट्स पल्सेस भी होने ज़रूरी है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे यू कैन लाइक बिल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अगर मुझे एज अ लेमैन, जैसे अभी आपने वो पॉइंट जो बताया था कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं अगर वी आर कंज्यूमिंग टेनिन और कैफीन बिफोर और विथ मील, Yes. राइट? तो वो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से रोकेंगे। तो इज देयर एनी वे फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड सच बेसिक थिंग्स फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और अ रेफरेंस बुक और समथिंग लाइक दैट? एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं ऐसा कोई रेफरेंस बुक है या नहीं, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट जो मेरे साथ फ्रेंड्स मेरे पढ़े हैं, दे मेक श्योर दैट कोई भी अगर उनको मिलने आए देन दीज आर द बेसिक थिंग्स विच अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड टेल देम। ओके, सो दिस इज अनदर वे that we can motivate you to go and meet a nutritionist or a dietitian because they will give you a simpler idea। आप एक काउंसलिंग में भी उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर सब लोग मेरे जितने मोटिवेटेड होंगे कि नहीं, बट आई रियली लाइक टू टेल माई क्लाइंट्स कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी ही है, क्या खानी है, दे कैन मेक देयर चॉइसेस, बट क्या अवॉइड करना है अगर वो हमें उन्हें बताएंगे तो दे विल हैव अ मोर आइडिया कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं करना है, बट ये सारों में से मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, राइट? सो दैट इज़ अ सिंपलर वे टू लाइक गो विथ इट। एंड दूसरी चीज़ें आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारा कंटेंट मत देखो, जो मैंने पहले भी बात की कि बहुत सारा कंटेंट मत देखो, क्योंकि देर आर मच इन्फॉर्मेशन इन दी सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर जो प्रूवन नहीं है। ओके, everything is not proven, everything is not correct and you should not believe everything। you have to be very sure। अगर आपने कुछ पढ़ा है then go to a verified website and read about it if you are very curious। और अगर आप क्यूरियस नहीं हो बट आपको सिर्फ उसका राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए then आप किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। दैट्स हाँ, मतलब बहुत ज्यादातर चीजें एनेक्डोटल एविडेंस के बेस पे होती है और इंडिया में तो खास कि अगर मुझे कोई दवाई जम गई या फिर कुछ चीजें मेरे लिए अच्छी हो गई तो आई कीप टॉकिंग अबाउट इट विद अदर पीपल कि आप भी ये करो, आप भी ये करो, लेकिन मेरी बॉडी टाइप मेरे और मैंने वो जो कंज्यूम किया उसके आसपास मेरा लाइफस्टाइल कैसा है वो सब इग्नोर करने के साथ अगर मैं सिर्फ यही एडवाइस करूं और वो लोग वही उसको मान के चले विदाउट एनी एविडेंस, राइट? क्योंकि हमारा एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ही नहीं, हम सिर्फ एनेक्डोट्स के बेस पे कि अच्छा इसको ये अच्छा हुआ तो हम भी वहां जाते हैं, हम भी इनको मिलते हैं। तो वो सारी चीजों की वजह से बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। इट्स इजी टू गेट मिस इन्फॉर्म्ड और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आ जाते हैं कि ये खाने से ये होता है। बीच में ऐसा कुछ भी आया था कि टोमेटो की चटनी बनाने से कुछ तो एसिडिक ज्यादा हो जाता है बॉडी, मतलब कुछ भी रैंडमली आ रहा है तो पीपल कीप बिलीविंग इट। यस, ओके, सो उसके रिगार्डिंग मैं एक छोटी सी स्टोरी कहूँगी। तो बेसिकली एक इंसान है जिनको किडनी स्टोन हुआ। ओके, दे आर रिलेटेड टू मी बट आई डोंट वांट टू मेंशन, बट उनको किडनी स्टोन हुआ एंड एक फ्रूट है बिजोरू करके। ओके, इट इज़ बीन नोन टू लाइक क्योर किडनी स्टोन्स, कि मतलब अगर आपको किडनी स्टोन हो गया तो अब 2-3 दिन उसका जूस पीजिए, एक्चुअली 1 वीक के आसपास उसका जूस पीजिए। इट इज़ जस्ट लाइक लेमन जूस बट ज़्यादा खट्टा होता है, तो आपको किडनी स्टोन्स निकल जाएंगे। तो ये जो इंसान है और वो जो फ्रूट जो आया था वो भी उन्होंने लेना स्टार्ट किया, और जिनका भी कॉल आता था वो बोलते थे मेरे को पथरी हो गया है एंड आई एम टेकिंग बिजोरो का जूस। और वो मेडिसिन की बात नहीं करते थे, वो सिर्फ बिजोरो का जूस की बात करते थे, और हम बोलते थे मेडिसिन की भी बात करो, फिर भी वो फ्रूट को ही हाईलाइट करते थे। फिर पता चला कि एक्चुअली वो जो पी रहे थे वो बिजोरो का फ्रूट ही नहीं था, वो एक और टाइप का नींबू था। एंड ही वॉज इन्फॉर्मिंग एवरीवन कि भाई बिजोरू से मेरे को सॉल्व हो गया, एंड उनको सॉल्व भी हो गया विद इन 1 वीक। उनका पेन काफ़ी कम हो गया बिकॉज वो हाइड्रेटेड रह रहे थे, वो मेडिकेशन ले रहे थे। सो इट्स नॉट ऑलवेज डिजीज से आप बच पाओगे। कोई एक फूड आपको बचाने नहीं वाला है, कोई एक फूड नहीं है कि भाई मैंने ये सरग वो खा लिया तो मेरा ये हो गया,
मैंने ये खा लिया, ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ साइंस वर्क्स Yeah, एंड न्यूट्रिशन वर्क्स. that's true. हाँ, this conversation brings me to another question कि हमने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पर बात की. तो और जैसे आप हमेशा से कहते हो कि यू आर समवन हु फोकसेस ऑन creating food inside their homes and Yes. not focusing or not purchasing food that is convenient, right? Yes. तो आज के टाइम में जहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट्स रहते हैं और जहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि जैसे हर एक डाइट के हिसाब से जो फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, राइट? Yes. कि अगर मुझे वीगनिज्म फॉलो करना है तो आलमंड मिल्क या सोया मिल्क विल बी एक्सपेंसिव कंपेयर टू द नॉर्मल मिल्क दैट वी हैव. ऑल्सो अगर मुझे हेल्दी रहने के लिए फाइबर वाला प्रोटीन वाला बहुत सारा अगर कंटेंट कंज्यूम करना है, बहुत सारी फूड कंज्यूम करना है, तो मुझे वो जब मार्केट में लेने जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें महंगी होगी. एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मुझे हेल्दी के नाम पे बेची जाएगी, बट इट्स नॉट हेल्दी. या पर हेल्दी नहीं होंगी. तो ऐसे में और मैंने देखा है कि आप जब भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हो उसमें बहुत सारी बार आपने ऐसी चीज़ें बनाई हुई है जैसे सोयाबीन से बनाई हुई फ्रेंकी, Yes. या फिर आपने प्रोटीन Bar. बार बनाया, Yes. फिर प्रोटीन पाउडर भी बनाया. Yes. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट कि आप घर पे रह के इतनी सारी चीज़ें बना सकते हो जो ऑलरेडी मार्केट में है. Yes. मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर एक के पास इतना टाइम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन टू हैव सम टाइम फॉर देयर ओन कि जहाँ पर 2-3 घंटे निकाले और ऐसी चीज़ें बनाए जो लॉन्ग टर्म के लिए उनके हेल्थ में बेनिफिट करेगी, राइट? एट द सेम टाइम दे विल सेव अ लॉट ऑन देयर पॉकेट, राइट? तो हाउ टू फोकस ऑन होल एंड अनप्रोसेस्ड फूड्स इन दिस टाइम्स? ओके, सो ट्रूली 2-3 घंटे नहीं लगेंगे. You just need half an hour to 45 minutes to prepare or for the prep of anything that you want to make at home. The simplest thing is chutneys and sauces जो हम बाहर से लाते हैं. मोस्टली ये सारी चीज़ें जो हमें स्प्रेड करनी होती है हमारे ब्रेड पे या बटर पे रोटीज़ पे, वो हम बाहर से लाते हैं. ओके, सो मिंट और कोरिएंडर का चटनी एकदम सिंपल है. अपनी मम्मी को पूछो, धनिया लो, थोड़ा सा मिंट लो, थोड़ा सा पीनट्स लो, उसमें सॉल्ट डालो, जैगरी डालो, ब्लेंड कर दो, दैट्स इट. आपकी फ्रेश कोरिएंडर चटनी घर पे बन जाएगी एंड इट विल टेस्ट अमेजिंग. बाहर की जो चटनी होगी वो थोड़ी ज़्यादा खट्टी होगी, ज़्यादा फ्लेवरफुल लगेगी, बट घर की वाली जो मिंट का जो फ्लेवर आएगा ना वो कहीं नहीं आएगा. सो आई थिंक जो चटनीज़ है उससे हमें स्टार्ट करना चाहिए. सॉसेस भी है, हमें बाहर जैसा सॉस नहीं मिलने वाला, केचप हमें नहीं मिलेगा घर पे, बिकॉज उसमें विनेगर होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, तो टेस्ट हमें बाहर वाले सॉस का सिमिलर नहीं मिलेगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन मेक मोमो का चटनी जो बनता है, थोड़ा चिली लो, थोड़ा टमाटर लो, उसको ब्लांच कर दो, मतलब बॉइलिंग कर दो, फिर उसको ब्लेंड कर दो, उसका जो टेस्ट होता है इट्स रियली अमेजिंग. So all these are simple things which you can make at home, but we don't do that because it is easy to buy from the market. Okay, so start with sauces and chutneys. Then you can start with snacks. जो snacks है mostly हम लोग को कुरकुरे है, वेफर्स है, या तो फिर पफ्ड राइस है, वो सारी चीज़ें हम बाहर से लाते हैं. मुरमुरा. ओके, सो मुरमुरा प्लेन मत खाइए. अगर आपको मुरमुरा खाना है उसके अंदर थोड़ा सैलड, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा धनिया, ये सारी चीज़ की उसको बना के सूखा भेल जैसे बनाइए. ओके, क्योंकि प्लेन अगर आप मुरमुरा खाएंगे तो इट इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो उसके साथ थोड़ा फाइबर ऐड करने के लिए ये सारे आप छोटे चीज़ें डाल सकते हैं जिसको चॉप करने में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगता है. सो दिस इज़ अ सिंपल स्नैक विच यू कैन हैव. ऑल्सो अनदर थिंग यू कैन डू इज़ के प्रोटीन पाउडर्स एंड प्रोटीन बार्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है एंड इट्स ऑल्सो वेरी ट्रेंडी. वॉट यू कैन डू इज़ दैट सिंपली आप घर पे जो नट्स है उनको लीजिए, फिर आप थोड़ा सा ओट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा खजूर ले सकते हैं बिकॉज वो स्वीटनेस देता है, एंड कोको पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों को सिर्फ ब्लेंड करके हमें कंबाइन करना है. ओके, ये मैं डायरेक्टली आपको कन्वर्सेशन में नहीं बता पाऊँगी, बट यू कैन सी माई वीडियो ऑन इंस्टाग्राम. एंड उसमें सिंपली ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप एक सिंपल प्रोटीन बार बना सकते हैं जो 1 वीक से 2 वीक तक आप यूज़ कर पाओगे. ओके, बिकॉज वो क्वांटिटी में ही हम बनाते हैं, एक सिंपल तो बनाते नहीं है. सो ऑल दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच कैन जस्ट टेक हाफ एन आवर टू 45 minutes ऑफ योर टाइम एंड यू कैन मेक इट ऑन अ संडे एंड यू कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो दिस कैन बी अ सिंपलर वे यू कैन यूज़ इट. ऑल्सो अगर आपको चिप्स ही खाने का मन है, हैव इट, बिकॉज मुझे भी काफ़ी बार मन करता है, बट हैव इट विथ अ सालसा. हम लोग बोलते हैं सालसा तो बाहर मार्केट में मिलता है. नो, प्याज लो, टमाटर लो, उसमें थोड़ा, अगर अभी मैंगो का सीज़न है, फ्रेश मैंगो आप ले सकते हो, थोड़ा सा नींबू डालो एंड इट टेस्ट अमेजिंग.
तो मतलब जैसे बाहर के लोग खाते हैं नाचो एंड सालसा, आप वेफर ले सकते हो और उसको सालसा के साथ खा सकते हो, जो आपका होममेड सालसा है। ओके, सो ऑल दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। और आजकल रेसिपीज़ मिल जाती है यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम से ज़्यादा आप यूट्यूब पे जाओ, बिकॉज यूट्यूब पे वी कैन स्पेसिफिकली चूज़ व्हाट वी वांट टू मेक। इंस्टाग्राम पे रैंडमली रील्स आते रहते हैं, रैंडमली रेसिपीज़ आती है। सो चूज़ व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ एंड देन यू मेक इट, सो दैट विल बी ईजियर। हाँ, मतलब whenever I have conversation with you, I feel enlightened कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानने मिलता है जो डेली बेसिस पे हमें पता होने के बावजूद वी आर नॉट अवेयर और वी आर नॉट डीलिंग विद दोज थिंग्स, राइट? Yes. कि जैसे अभी आपने प्रोटीन बार के बारे में बताया और वो सब, तो वी कैन डेफिनेटली इनकलकेट दिस इन आवर लाइफस्टाइल कि हमें Yes. हर चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। Yes. हर एक चीज़ के लिए मतलब मार्केट पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसको भी हम बना Yes, सकते हैं। मोस्टली हम वेजिटेबल्स से बहुत कुछ, और टमाटर और प्याज ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको लेके कुछ भी बना सकते हैं। डेफिनेटली। तो जैसे अभी हमने इंडिविजुअल चॉइसेस के बारे में बात की कि हमें कैसे फूड और न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस रखनी चाहिए, या फिर किस तरह से हम वी कैन अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड जस्ट लाइक यू मेंशन वी कैन क्रिएट आवर ओन रेसिपीज एट Yes. होम, राइट? तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि इंडिविजुअलिज्म के पर्सपेक्टिव से what food choices we can have and how to inculcate healthy lifestyle and stuff like that. But जब हम क्योंकि we need to save our planet, right? And we need to consider environment when it comes to food choices and life choices, right? पर जब हम environment के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ associate करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि point of food and nutrition, right? Yes. So what should you have to say about that? Okay, the very first thing is अगर सस्टेनेबल फूड की अगर हम बात करते हैं, then the very common thing is composting, जिसके बारे में हमने सुना होगा। Composting is basically जो भी हमारा होम ग्रोन वेस्ट है, ओके, होम ग्रोन इज बेसिकली वेजिटेबल पील्स है, आपका फ्रूट पील्स है, या तो फिर कोई भी ऐसा वेस्ट जो घर से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कंपोस्टिंग के लिए। कंपोस्टिंग मतलब हमारे जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? खातर के फॉर्म में। खातर कैसे हम बना सकते हैं कि ये सारे जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है उससे ही वो सॉइल प्रोड्यूस होता है, और वो सॉइल को फिर हम हमारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं टू फ्लरिश अवर होम ग्रोन जितने भी प्लांट्स है और जितने भी छोटे छोटे हम लोग पौधे लगाते हैं हमारे घर पे वो। उसके अलावा व्हाट वी कैन डू इज दैट प्लास्टिक वेस्ट को हम कम कर सकते हैं। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में पैकेज्ड हुए होते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को हम ट्राई कर सकते हैं टू लाइक लिमिट देयर यूज। एंड ऑल्सो वी शुड प्रमोट यूजिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड ब्रांड्स those who are into sustainable packaging and sustainable plates, sustainable spoons, बहुत सारे अभी मार्केट में चल रहे हैं। So we have to make sure to use those brands और promote those brands। So उससे क्या होता है कि एक तो वो सारे जो छोटे ब्रांड्स हैं उसको हम वो हेल्प कर सकते हैं, और दूसरी तरह से हमारे हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है, बिकॉज प्लास्टिक में हमें पता है कि इट हैज़ एन नंबर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर आवर बॉडी। तो कैंसर्स भी बहुत सारे प्लास्टिक से फैलते हैं। तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए, एनवायरनमेंट को हेल्प करने के लिए, वी हैव टू यूज़ मोर सस्टेनेबल एंड प्लास्टिक फ्री ब्रांड्स। एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज दैट सिंपली मेक अ कॉन्शियस चॉइस। ओके, ये हमारे पे है कि हमें ये चॉइस करना है या नहीं। इफ़ वी वांट टू स्टे क्लोज टू आवर नेचर और then we definitely have to make some compromises, which will be difficult for us because plastic use is very simple. But to shift to other products and to shift to healthier or not easily available packaged materials, it takes a little time and it takes a little spending of money as well. Yeah. But as I have observed at Anahata, Yes. कि यहाँ पर फूड क्वालिटी और क्वांटिटी वो तो अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, बट एट द Yes. सेम टाइम दे आर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट। Yes. तो जब भी यहाँ पर कुछ ऑर्डर किया है तो ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे पैकेजिंग में ही आया है जो सस्टेनेबल हो, Yes. जो हार्मफुल ना हो। तो ये भी मतलब फॉर
different businesses, it's also important. मतलब एज एन इंडिविजुअल तो हम जितना कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं, लेकिन बिजनेसेस को भी ये कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली फूड इंडस्ट्री से जो भी बिलोंग करते हैं, कि वो अपने पैकेजिंग में या फिर जो प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा इनकलकेट करे जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म रहे. राइट. And whenever we had time, तो मुझे हमेशा मजा आता है, एंड I'll make sure कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम भी और कुछ डिटेल में बात करें, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है. जैसे कि आपने रेडिश पे रिसर्च किया था, तो ऐसे आगे भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो, तो we'll talk about those things as well. I would like to thank Astha for coming here and joining us for this episode. I would also like to thank Anahata for providing this space. You should definitely check out their website for the products. You should definitely check out their cafe whenever you are in Vadodara. And I would also like to thank Deven for always being there whenever we need them. We need him for a shoot. So thank you for all of you for joining us today. To all those listeners who want to listen to our episodes, you can search All Fingers and Thumbs on JioSaavn, on Spotify, on Google Podcast, on Apple. We are everywhere and anywhere. We also have video episodes on YouTube. You can search for RipScript and you can find all the episodes over there. We also have our website, allfingersandthumbs.ripscript.com, where you'll find all the details of our hosts and our guests and the different episodes that we have till now. If you have any kind of requirement for branding, designing, marketing and stuff, you can reach out to RipScript via Instagram or via website. And you can also follow Deven for his content related to photography and videography and editing. You can reach out to Your Humorous Nutritionist for different health and food tips on Instagram. You can check out her content as well. Thank you very much. Good night, good morning, good afternoon, wherever you are listening to this episode. Thank you.